हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस और हम पढ़ रहे हैं अकाउंट का गाला क्वेश्चन पेपर 6 का सेक्शन ए। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन लोन लैंड बाय द पार्टनर्स टू द फर्म व्हेन नो सच प्रोविजन इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड। इसका आंसर है ऑप्शन ए 6%। ओके। 2 नंबर 2, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू कीप कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। इसका आंसर है ऑप्शन बी 2। अंडर विच हेड गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट। इसका आंसर है सी नॉन करंट एसेट। अब हम आगे बढ़ेंगे। 4, विच पॉइंट शुड बी कीप इन माइंड फ्रॉम द फॉलोइंग इन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका आंसर है ऑप्शन ए मोर इंपॉर्टेंस टू प्रॉफिट ऑफ रिसेंट ईयर। 5th, to whom does the accumulated profits or reserve fund belong? इसका आंसर है ऑप्शन बी to the existing partners। 6th, change in partnership due to the several reasons means। इसका आंसर है ऑप्शन ए reconstructions of partners। 7th, dash means ratios in which all partners including the new partners decided to share future profit or loss of the firm। इसका आंसर है ऑप्शन बी new profit share ratio। 8th, at the time of admission of a new partners, which ratio is used to be distribute the amount of goodwill shown in the book between old partner। इसका आंसर है ऑप्शन ए in old ratio। How long does a retired partner claim from profit in the partnership firm? इसका आंसर है ऑप्शन सी till retirement from final account। 10, when is the loan given by partner's wife from her personal wealth to the firm repaid? इसका आंसर है ऑप्शन सी with normal debts। 11th, at the time of dissolution which payment is to be paid lastly from the realizations of the firm's asset? इसका आंसर है ऑप्शन बी excess of capital account। 12 number, how many minimum members must be there in public company? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 7। 13, how many types of share can be company issues as per company act? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2। 14th, in case a company has earned profit or not earned to pay interest on debentures is। इसका आंसर है ऑप्शन बी कंपल्सरी। 15, when financial statements are analyzed by the management of their decisions then what is this analysis called? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इंटरनल एनालिसिस। 16, in Z companies amount of sales revenue of previous year is 8 lakh in which current year increase rate is 12.5%, then how much is the amount of sale revenue of current year? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 9 लाख। अब 17, which of the following is not included to computed current ratio? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी फर्नीचर। 18, working capital means। वर्किंग कैपिटल मीन्स 18 हम पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल मीन्स। इसका आंसर है ऑप्शन डी डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब हम 19 पढ़ेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका आंसर है ऑप्शन ए इज करंट लायबिलिटीज बट कंसीडर्स एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 20, कैश इक्विवेलेंट हैज। इसका आंसर है ऑप्शन ए हायर लिक्विडिटी। अब हम सेक्शन बी पढ़ेंगे। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गिव द फॉर्मूला ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो इसका आंसर हम यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है वो नीचे की साइड से हैं। ठीक है, अब मैं पढ़ रही हूँ। एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड द फॉर्मूला ऑफ गुडविल कैन बी स्टार्टेड एज अंडर। जैसे कि हमें बताना है कि गुडविल का फॉर्मूला क्या है, तो गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे। व्हाट इज रिवॉल्यूशन अकाउंट?
ठीक है, अब इसका आंसर है A special account is opened in the book of a partnership firm to record the accounting effect of revaluations of assets and liabilities. This account is called the revaluation account. हम क्वेश्चन थर्ड पढ़ेंगे. Explain accounting treatment of old goodwill appearing in the balance sheet of the firm at the time of retirement of partner. तो इसका आंसर है old goodwill which is appearing in the balance sheet of the firm at the time of the retirement of a partners, it will be written off in old partner profit loss ratios among all the partners including retiring partners. अब इसकी जर्नल एंट्री ऐसी आएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट होगा तो गुडविल अकाउंट होगा. अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 24. By what other name is realization account known? तो इसका आंसर है the other name of realization account is known as nominal account. दूसरा क्वेश्चन है what is the dissolution of partnership firm? When partnership firm lost its legal existence forever, this is known as a dissolution of partnership firm. In brief, the process to close down the firm and the business is called dissolution of partnership firm. दूसरा क्वेश्चन, what is debentures? Sometimes company borrow long-term funds from the public. Against the company so borrowed, the company issues a documents acknowledging its debts to the investors. Such a document is known as a debentures. दूसरा क्वेश्चन, in which form ratio can be represented? The presentation of ratio can be done in terms of proportions, in terms of percentage, in terms of time, in terms of fractions and in terms of days, week and monthly. Next question, by which ratio is liquidity measured? Liquidity is measured by current ratio. What is financing activities? Financing activities are such activities due to which size or composition of owners' capitals and borrowed capitals of business gets changed. Give illustration of such transaction from where two activities are taken place. इसका आंसर ये रहा. Two activities from the one transaction. Payments towards principal is considered as a investing activities and payments of interest is considered as financing activities. In payments of installment of hire purchase. तो अब हम सेक्शन सी पे आए हैं. उसका 31 क्वेश्चन है, कला, लता एंड तनु आर पार्टनर्स ऑफ फर्म. देयर कैपिटल proportion is 3:2:1. Lata is entitled to receive commission 10% of net profit after deduction of her such shares. What amount will be received by Lata when profit of the firm is 1,65,000 at the end of the year? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इसका आंसर हम है, हमारा आंसर कहाँ है गाइस? हाँ, तो अब इसमें बता रखा है कि लता का कमीशन कितना है. तो हमें कमीशन निकालने के लिए पहले उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो कमीशन का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. तो हमारे पास प्रॉफिट कितना था? 1,65,000 जो था हमारा प्रॉफिट था. अब हम रेट ऑफ कमीशन हमें दे रखा है कितना? हमारा रेट ऑफ कमीशन कहाँ गया? रेट ऑफ कमीशन हमारा दे रखा है ये 10%. ओके, तो हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है. और हमें डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन दे रखा है. तो हमने डिवाइड बाय 100 प्लस किया, मतलब हमारा जो है रेट ऑफ कमीशन 10 था. 100 में 10 प्लस करेंगे तो 110 होगा. तो हमने इसको जो है 1,65,000 को इंटू किया 10 से, डिवाइड किया 110 से. तो हमारा जो कमीशन है, लता का कमीशन कितना आया? 15,000.
अब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बोला गया है तो हमें उसका भी फॉर्मूला लिखना है। अब उसका फॉर्मूला क्या होगा कि टोटल प्रॉफिट में से माइनस करेंगे कमीशन को। अब हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था 1,65,000 और हमारा जो है कमीशन कितना आया था 15,000, तो हम 1,65,000 से माइनस करेंगे 15,000, हमारे पास आ जाएगा कि प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना हुआ 1,50,000। ठीक है, अब जो ये आया है ना हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हर एक पार्टनर्स में। तो जो लता का है अमाउंट उसके पास कितने आए, तो अब उसके पास कितना है कि पहले तो उसको मिला कि कमीशन कितना था, ठीक है, और उसके पास प्लस प्रॉफिट हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट कितना था 50,000 का प्रॉफिट हुआ और उसके पास कमीशन कितना आया 15,000 का। तो उसके पास सारा का सारा लता के पास अमाउंट कितना रिसीव हुआ 65,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आंसर खत्म होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है राज, जैन एंड पटेल आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 3:2. All the partners have decided to change their profit and loss ratio to equal में calculate gain by the partners। अब हमें यहाँ पे ना गेन का फॉर्मूला यूज करना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो हम पहले लिखेंगे कि राज, जैन और पटेल का जो है ओल्ड रेशो कितना था और न्यू रेशो कितना था। अब गेन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू में से माइनस करते हैं ओल्ड को। ठीक है, अब हमने न्यू में से राज का कितना था न्यू 1:1 में था सबका, तो राज का कितना होगा 1/3 और उसका ओल्ड कितना था 3/8। हमने ये किया तो हमारे पास आया 8 - 9/24। हमारे पास उसका सेक्रीफाई रेशो आया कि वो सेक्रीफाई कर रहा है कितना -124, उतना वो सेक्रीफाई कर रहा है। ठीक, अब हम जैन का निकालेंगे। अब इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यू को माइनस करेंगे ओल्ड से। अब जैन का कितना था 1/3 और उसका ओल्ड कितना था 3/8। हम इनको माइनस करेंगे तो ये भी जो है ये भी सेक्रीफाई कर रहा है। ठीक है, जैन और राज दोनों जो है सेक्रीफाई कर रहे हैं। अब हम पटेल की बारी आती है। ठीक, अब हम पटेल का निकालेंगे कि जो उसका न्यू था वो कितना था 1/3 और जो ओल्ड है वो कितना था 2/8। हमने इसका निकाला। अब ये गेन कर रहा है, ये जो है ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे गेन कर रहा है। बस हमें इतना ही निकाल के दिखाना था और कुछ नहीं दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताएगा कि अब ये थियरी क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, हम थियरी क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। एक्सप्लेन द नॉर्मल प्रोसीजर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूशन। अब हम थियरी क्वेश्चन को समझाने नहीं बैठेंगे क्योंकि आप लोग इतना तो पढ़ के आए हो ना कि आपको थियरी समझ में आए, तो हम आपको थियरी यहाँ पे दिखा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। ठीक है, ये आप ले लो स्क्रीनशॉट सारे के सारे और उसके बाद आप पढ़ लो। हो गया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब 34 क्वेश्चन है, ये भी एक थियोरी क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है, हम बस एक बार गो थ्रू करेंगे, हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और मैं आपको दिखा दूंगी आंसर्स, आप उसके स्क्रीनशॉट्स ले लेना। अब इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग बैलेंस डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब हमें उसको एक्सप्लेन करना है, हमें यहाँ पे कुछ दे रखा है, हमें उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि जनरल रिजर्व वो क्या होता है, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स। तो ठीक है, हमें इसके बारे में पूछा गया है कि हमें इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि ये क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपको पता होगा इतना, तो तभी तो आप यहाँ पे गाला के सॉल्यूशंस देखने आए हो। ठीक है, तो आप सबके सब स्क्रीनशॉट ले लो गाइज। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। ले लिया सबने, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, जुगल लिमिटेड इशूज 8,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 each at par as on 1/8/19 को। These debentures are to be redeemed on 31/7/2004 at 120 per debentures. Pass the journal entries in the book of companies for issues and redemptions of debenture. Without narration दे रखा है गाइस, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान ही रहेगा, ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे क्या क्या होगा। ठीक है, अब हमने इसकी जर्नल एंट्रीज मारनी है, तो हमें जर्नल एंट्रीज में पहले क्या लिख करना है, डेट, पार्टिसिपेंट, डेबिट, क्रेडिट, इतना तो आता होगा आप लोगों को। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन से डेट कब कब डालनी है। डेट अगर गलत हुआ तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो 1/8/19 को बैंक में पैसे आएगा 8 लाख,
क्योंकि 8,000 इंटू हम 100 करेंगे तो वो 8 लाख होगा, ठीक है। तो बैंक में पैसे आएंगे 8 लाख, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में 8 लाख होगा। ओके, हमने ये पढ़ा। अब उसी तारीख को डिवेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ 8 लाख से। हमने अगर किसी अमाउंट को क्रेडिट किया है 8 लाख से तो उसी को डेबिट करेंगे हम 8 लाख से। ओके, और इसमें होगा लॉस ऑन इश्यूज डिबेंचर, उसमें है लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स 1,60,000, ठीक है। टू 9% डिबेंचर अकाउंट्स में 8 लाख आया, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर हमारे 1,60,000 आया। अब हम दूसरी एंट्री करेंगे। हमें यहाँ ये बोला गया था कि 31/7/24 को जो है रिडीम हो रहा है अकाउंट, ठीक है। तो हम वो जो है डेट डालेंगे, कितने से हो रहा था, 8% डिबेंचर जो है डेबिट होगा 8 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट जो है 1,60,000 टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है। ये हमारा ये इन दोनों को प्लस करके 8 लाख को प्लस करके 1,60,000 में से हमारा आया 9,60,000। तो हमने वो यहाँ पे लिखा कि इतना पैसा जो है डिबेंचर होल्डर के पास जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट एंट्री मारेंगे क्योंकि अब डिबेंचर होल्डर का अकाउंट हमने खोला है तो उसको बंद भी करना पड़ेगा। डिबेंचर अकाउंट का जो अकाउंट था डिबेंचर होल्डर का, हमने वो कितने से किया था क्रेडिट, 9,60,000 से क्रेडिट किया था, तो हम उसको उतने ही अमाउंट से डेबिट करेंगे। मतलब डिबेंचर अकाउंट जो है होल्डर डेबिट होगा 9,60,000 से टू बैंक अकाउंट 9,60,000, ठीक है। सबको समझ में आ गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब देखो ये भी जो है एक तरह से थियरी क्वेश्चंस है, तो हम सिर्फ एक बार देख लेंगे कि क्वेश्चंस क्या पूछा है और आंसर्स आपको करने हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए प्रोवाइड करूंगी पिक्चर जिसमें से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डिबेंचर एज पर कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। तो हमें ये करना है। अब मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ गाइस, ठीक है। ये आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया सबका। अब हम सेक्शन डी पे आते हैं गाइस, ठीक है। तो सेक्शन डी का सबसे पहला क्वेश्चन है 37 नंबर, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस 5 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 साल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमें, ठीक है। अब हमें 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है एवरेज प्रॉफिट। अब हमें मुझसे गुडविल निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम आंसर्स के साथ जाएंगे। गाइस आंसर थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया है। हाँ, तो हम क्या करेंगे पहले हमें ईयर लिखना है कि कौन कौन से ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है और हमें प्रॉफिट लिखना है, ठीक है। अब हमने देखो जैसे 20 to 21 के बीच में 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, 21 to 22 के बीच में 80,000 का प्रॉफिट हुआ है, 22 to 23 के बीच में 20,000 का, ठीक है। अब प्रॉफिट नहीं हुआ है ये, क्योंकि ये जो है ना ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट के जो सम्स होते हैं, मतलब ये ध्यान रखना कि अगर गुडविल वाले चैप्टर में कोई हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है या फिर वेटेज प्रॉफिट मेथड से करना है, अगर जो कोई अमाउंट जो है वो ब्रैकेट में आ रही है ना, तो हम उसको माइनस करना है, ठीक है। जैसे कि हमने 60,000 प्लस करेंगे 80,000, ठीक है, और 30,000 और माइनस करेंगे 20,000। अब इसमें याद रखना कि आप सबको प्लस नहीं करना है आपको, ठीक है। जो ये ब्रैकेट में अमाउंट दे रखा है उसको हम माइनस करेंगे, याद रखना जो ब्रैकेट में अमाउंट है उसको हम माइनस करेंगे। तो माइनस करके हमारे पास कितना आया, 1,50,000। अब हमें जो है एवरेज प्रॉफिट का जो है हमें फॉर्मूला जानना है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो आप तो इतना पढ़ के आए हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब मैं बताने नहीं बैठूंगी सबको। इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स, ठीक है, कि कितना प्रॉफिट हुआ उसका और कितने साल में हुआ वो प्रॉफिट। मतलब 1,50,000 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास आएगा 37,500, ठीक है, कि वो उसका एवरेज प्रॉफिट है। अब हमें गुडविल भी निकालने को बोला है, कितने के, परचेजिंग ईयर क्या थी हमारी, 5 थी। क्वेश्चन में हमारी जो परचेजिंग ईयर वो 5 थी। तो हम क्या करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 37,500 आया। अब हम परचेजिंग ईयर हमारा कितना था, 5, तो हम उसको इनटू मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आएगा कि इसका आंसर 1,87,500। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर खत्म होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी गुडविल के
चैप्टर का ही है, तो हम ये अटेम्प्ट करके आ सकते हैं क्योंकि ये इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो हमें इसमें मार्क्स नहीं कटवाने हैं, तो हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अब यहाँ पे है 38 क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ चिन्नू एंड डिन्नू फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हमें ये कौन से मेथड से करना है, तो कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। आपको सारे मेथड जो है अच्छे से ध्यान होने चाहिए ताकि आप जो गड़बड़ी ना करो। अब हम इसके आंसर्स पे आ जाएंगे। अब इसका आंसर हमें पूरा का पूरा पहले तो हमें बताना, मतलब आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि सीरियल नंबर क्या है, पर्टिकुलर्स क्या है, अमाउंट क्या है, ये आपको जो है बनाना ज़रूरी है। इसके अगर आप नहीं बनाओगे ये तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉय। हमें क्या क्या दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉय दे रखा है जो कि हमारा 9 लाख है, तो हमने कैपिटल एम्प्लॉय लिख दिया 9 लाख, ठीक है। हमें अब दे रखा है रेट ऑफ रिटर्न, तो वो हमारा कितना है, 12% है। अब हमें क्या करना है ना कि जो सुपर प्रॉफिट मेथड का ये होता है कि एक्सेप्टेड प्रॉफिट भी हमें निकालना होता है। अब उसका फॉर्मूला क्या होगा कि कैपिटल इंटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास कैपिटल कितना था, 9 लाख था, रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 12%। हमने उसको मल्टीप्लाई किया, उसकी वजह से हमारा आया 1,08,000। हमारे पास जो है क्या आया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारे पास 1,08,000 आया। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो हमें कितने साल का दे रखा है, ठीक है, तो हमें 5 साल का दे रखा है यहाँ पे प्रॉफिट की, कितना प्रॉफिट है। अब इसमें भी ध्यान रखना कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर जो है वैल्यू जो है इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, मतलब साल में जब इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, उसमें हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट, वेटेज वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कभी हुआ है 1 लाख, कभी 1,40,000, फिर 1,30,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे। तो इतना हमें सबको आता है कि हमें ईयर लिखना है, हमें प्रॉफिट लिखना है, उसका टोटल करना है। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, अभी 7 लाख आया। अब हमें जो है फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा एवरेज प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना था, 7 लाख था, ठीक है, और नंबर्स ऑफ ईयर कितने थे, 5 लाख थे। तो हमारे कितने आया, 5 था। नंबर्स ऑफ ईयर, सॉरी गाइज, नंबर्स ऑफ ईयर जो है हमारे पास 5 था। तो हमारे पास कितना आया, एवरेज प्रॉफिट जो है हमारे पास आया 1,40,000, ठीक है, इतना याद रखना। अब हम आगे करेंगे। अब सुपर प्रॉफिट में से पूछा गया तो हम उसका फॉर्मूला भी डालेंगे, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। हमने एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला था, 1,40,000, और हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था 1,08,000, ठीक है। अब हम इन दोनों को ना माइनस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। हमने इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास आया 32,000। क्या आया, ये 32,000 हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। अब हमें गुडविल भी निकालना है, तो हमें जो है गुडविल की जो फॉर्मूला होती है वो होती है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 और डिवाइड बाय एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना था, 32 था, 32,000 था। हमारे पास 100 जो है 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इतना याद रखना, ठीक है। और हमारे पास एक्सेप्ट रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 12। तो हमने ये किया तो हमारे पास ये आया, ठीक है। ये अमाउंट हमारे पास आई गुडविल की, तो यहाँ पे आंसर खत्म होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन पे आए हैं हम। अब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स ऑफ गणानंदा कंपनी, ठीक है, एलटीडी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2003 एंड 31/3/2004 आर एज फॉलोज, ठीक है। हमें यहाँ पे दे रखा है, अब हमारे यहाँ पे दे रखा है पर्टिकुलर दे रखा है, नोट नंबर दे रखा है, हमें जो है प्रीवियस ईयर दे रखा है और करंट ईयर दे रखा है, ठीक है। ये हमारा करंट ईयर हुआ, ये हमारा प्रीवियस ईयर हुआ, ठीक है गाइस। जो प्रीवियस ईयर है वो यहाँ पे दे रखा है, मतलब ये प्रीवियस है, ये करंट ईयर है। अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि सेल्स रेवेन्यू कितना है, मतलब करंट ईयर में इतना हुआ, प्रीवियस ईयर में इतना हुआ, अदर इनकम करंट ईयर में इतना हुआ, प्रीवियस ईयर में इतना हुआ, और एक्सपेंसेस करंट ईयर में इतना हुआ और प्रीवियस ईयर में इतना हुआ। हमें यहाँ पे ना एक और जो है दे रखी है, एक और चीज़ जो दे रखी है यहाँ पे, ये दे रखी है कि हमें ना इनकम टैक्स की जो रेट है ना वो हमें अलग से दे रखी है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। अब ध्यान रखना हर चीज़ में। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे करते हैं ये आया, ठीक है। हमें जो ये सब जो आप देख रहे हैं जो टेबल्स है ना वो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, भले आपको सारा आपका आंसर ठीक क्यों ना हो। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो पहला होता है ना, पहला जो है बॉक्स जो होता है वो पर्टिकुलर का बॉक्स होता है, ठीक है। जो दूसरा होता है वो नोट का बॉक्स होता है, और आपने ये 4 जो है ये तो आपको पहले क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक है गाइज। ये 4 जो है आपको ये पहले क्वेश्चन में मिल जाएंगे, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर जो 3 नंबर का होगा ना, हमेशा
जो 3 नंबर का होगा वो प्रीवियस ईयर का होगा, इतना याद रखना। जो हम जैसे हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर हमारा 1 हुआ, नोट नंबर हमारा 2 हुआ और प्रीवियस ईयर लिखेंगे, करंट ईयर लिखेंगे, ठीक है। इतना तो आप याद रखना कि जो प्रीवियस ईयर है वो हमारे 3 नंबर पे आएगा, 3 नंबर के बॉक्स में हमारा क्या आएगा, प्रीवियस ईयर आएगा, 4 नंबर के बॉक्स में हमारा क्या आएगा, करंट ईयर आएगा, ओके। अब जो 5 है, यहाँ पे 5 अलग दे रखा है, ये नंबर है 5, ठीक है। अब आप इसको इंक्लूड मत करना। अब हमें जो 5 नंबर है उसमें क्या करना है कि 4 - 3 करना है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना गाइज, 3 नंबर को पहले लिखना है, 3 नंबर वाला प्रीवियस ईयर है, 4 नंबर वाला आपका करंट ईयर है। तो हमें करंट ईयर में से माइनस करना है प्रीवियस ईयर को, तो उस हिसाब से आप सोच समझ के सब कुछ लिखना, आप गलती कहीं मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप इसमें आसानी से जो है मार्क्स ला सकते हो, तो इन सब में वो गलती मत करना, ठीक है। अब हमने क्या करना है ना कि ये हमारा दे रखा है और ये हमारा दे रखा है। अब हमने इसमें से जो करंट ईयर का प्राइस है, ठीक है, जो सेल्स रेवेन्यू करंट ईयर की है उसको माइनस किया है हमने प्रीवियस ईयर से, तो हमारा ये आंसर आया है, ठीक। हमने इतना किया तो हमारा ये आंसर आया। अब हमारा जो 6 है, हम 6 भी देख लेते कि 6 में क्या है, कि जो 6th बॉक्स है हमें उसमें क्या लिखना है। हमें उसमें लिखना है कि 6 वाला मैं यहाँ पे आपको अलग से बता देती हूँ कि 5/3 × 100, ये अलग से है। जो 6th नंबर है ना वो नंबर दिया गया है कि ये नंबर है, और ये जो है ना कि हमें बताना है कि हमें ये करके दिखाना है इस बॉक्स में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 5 हमारा क्या था, 4 - 3 करके जो हमारे पास अमाउंट आई है उसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, और नहीं हम सॉरी गाइज हम क्या करेंगे, जो 6th में है हमारे बॉक्स है उसमें क्या दे रखा है हमें कि जो 5 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 3 से, मतलब कि जो से 22 लाख था उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 44 लाख से, तो हमारे पास कितना परसेंटेज आया, हमारे पास 50% आ जाए, ठीक है। ये याद रखना कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक। अब हम अदर इनकम पे आते हैं, तो हम यही करेंगे। पहले हमने 3 में क्या लिखना है, प्रीवियस ईयर लिखना है, 4 में हमें लिखना है करंट ईयर। तो याद रखना कि 3 और 4 में क्या करना है, नहीं तो अगर आप 3 और 4 में गलती करोगे तो जो 5 नंबर का जो बॉक्स है उसमें आप गलती करोगे, ठीक है। तो अमाउंट है हमारी अदर इनकम की, प्रीवियस ईयर की 3 लाख है और करंट ईयर की 4,54,000 है, ओके। अब हमें क्या करना है कि 4,54,000 में से माइनस करेंगे 3 लाख को, तो हमारे पास ये आएगा 1,54,000। अब 1,54,000 आया, और 6 में क्या था कि हमें जो है 5 को डिवाइड करना है 3 से, इंटू करना है 100 से, तो 5 में हमारा क्या आया 1,54,000, ठीक है, ठीक है। डिवाइड में हम क्या करेंगे 3 क्या है हमारा, 3 क्या है हमारा प्रीवियस ईयर है, उसकी अमाउंट कितनी दे रखी है 3 लाख, तो हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 5 आएगा, हमारा ये आया 5वां। अब हमें 5th को कैसे करना है, 1,54,000 को डिवाइड करेंगे 3 लाख से और इंटू करेंगे 100 से, तो हमारे पास आएगा 51.3। ध्यान रखना कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो ये है कैसे आया। अब ये मत करना कि 3/5 करना, ऐसा मत करना, 5/3 है, रट के जाना है ये क्वेश्चंस, ओके। इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ऐसे हम टोटल इनकम में करेंगे, पहले हम ये रफ कर देते हैं, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टोटल इनकम भी ऐसे ही होगा कि हमें जो है 4 में से 3 को माइनस करना है, मतलब हमारे पास ये अमाउंट दे रखी है, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास ये अमाउंट आई, ठीक है। हमारे पास क्या अमाउंट आई, ये अमाउंट आई। अब हमें उसका जो है परसेंटेज निकालना है, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, 23,54,000 डिवाइडेड बाय 4, 47 लाख और इंटू 100, इसके बाद हमारे पास 50.1 आ गया। अब हम इसमें टोटल इनकम में हम पहले तो हम देखेंगे कि ये कैसे हमने किया है, तो ये ऐसे ही होगा, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या करना है ना कि जो 3rd नंबर है आप देख सकते हैं कि टोटल इनकम में हमने क्या लिखा है कि फर्स्ट को प्लस करना है सेकंड से, तो हमारा सब कुछ आएगा। अब ये 40 जो है 47 जो लाख है वो कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे दे नहीं रखा है कि टोटल इनकम कितना है, तो हमने क्या किया है, हमने इन दोनों का प्लस किया, मतलब इस अमाउंट को इससे प्लस किया तो हमारे पास ये अमाउंट आई, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर को, जैसे प्रीवियस ईयर का जो सेल्स रेवेन्यू था उसको प्लस किया अदर इनकम से, तो हमारा टोटल इनकम आएगा, ठीक है। इतना याद रखना कि प्रीवियस ईयर को सेल्स रेवेन्यू को प्लस करेंगे अदर इनकम से, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आएगा।
ओके ऐसे ही हमने करंट ईयर के साथ किया है। सेल्स रेवेन्यू जो करंट ईयर का था उसकी जो अमाउंट थी उसको जो हमने प्लस किया है अदर इनकम के अमाउंट से, तो हमारे पास ये अमाउंट आई है। और बाकी का आपको ये करना तो आ ही गया है कि 5th मतलब 4 - 3 कैसे करेंगे और 5 / 3 × 100 में कैसे करेंगे, तो कैसे परसेंटेज आएंगे। ठीक है, इतना याद रखना कि सेल्स रेवेन्यू को प्लस करना है अदर इनकम से, तो हमारा टोटल इनकम आएगा। अब टोटल इनकम आया, अब ये मत कर देना कि इन दोनों को भी आप प्लस करो, इन दोनों को प्लस नहीं करना है, हमें वही प्रोसेस करना है जो हम ऊपर कर रहे थे। ठीक है, इन दोनों को प्लस नहीं करना है, इन दोनों को प्लस नहीं करना है, हमें इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे एक्सपेंस पे। अब हमारा दे रखा है कि 4th नंबर जो है हमारा एक्सपेंस है, तो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस कितना है, इतना है, और करंट ईयर का इतना है। ठीक है, तो 4 - 3 मतलब 5 वाले में क्या आएगा हमारा 4 - 3, तो 4 - 3 क्या, तो हमारे पास इतना अमाउंट आया। और इसको हमने क्या किया, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारा था टोटल का, टोटल इनकम। प्राइस राइटिंग पे मत जाना, ओके, धीरे धीरे करके ये सही हो सकता है। अब हम एक्सपेंस पे जाएंगे, 172,000 इंटू 100, और हमारा 3 कितना था, इतना, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, हमारे पास परसेंटेज इतना आएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज कैसे आया आप सबको पता चल गया। अब हम करेंगे ये 5th। अब इसमें बताया गया है कि प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स। ठीक है, अब की प्रॉफिट पहले इनकम टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट था, तो हम क्या करेंगे, जो 3rd हमारा किया है ना हमने, हम पहले इसको रफ कर देते हैं, आपको समझ नहीं आएगा तो। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, मतलब कि पहले प्रॉफिट कितना था, इनकम टैक्स से पहले प्रॉफिट कितना था, तो हमें यहाँ पे हमने लिख रखा है कि 3rd - 4th। ठीक है, 3rd - 4th हमने लिख रखा है, मतलब कि टोटल इनकम और एक्सपेंस को माइनस करना है। अब हमने क्या किया ना, जो ये 47 लाख था, ठीक है, उसको क्या किया ना 30,80,000 से माइनस कर दिया है, तो हमारे पास 16,20,000 आया। समझ में आया आपको अकाउंट, ये अमाउंट कैसे आया। ठीक है, कि हमने जो है इन चीज़ों की बात हो रही है, इन दो की। ठीक है, इन दोनों की बात हो रही है, मतलब हमने पहले वाले में क्या किया था कि टोटल इनकम निकालने के लिए हमने जो ऊपर लिए थे उनको प्लस किया था। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, हमें यहाँ पे माइनस करना है, तो हमारा जो है अमाउंट ये आएगा। अब हमें इसको भी माइनस करना है। ठीक है, तो हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास ये अमाउंट आया। अब ये मत करना कि इनको माइनस कर देना है, ऐसा नहीं करना है। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे आपकी कैसे क्या क्या आया। हमने जो है इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास ये अमाउंट आई, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास ये अमाउंट आई। अब हम पहले जैसे करते थे वैसे ही करेंगे कि 4 में से -3 किया, 4 में से इसको माइनस किया तो हमारे पास ये अमाउंट आई। अब ये कैसे आया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं 4 बार बोल रही हूँ। ठीक है, हम कैसे करेंगे, हम तो भी आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, आप प्यारे बच्चे हो, ओके, हम आपको बता देंगे। हमारे पास 42% आया। ठीक है, हमारे पास ये कहाँ से आया आपको पता चला। अब हम आगे की स्टेप पे करेंगे। अब हमारे पता है हमने देखा था कि क्वेश्चन हमारा कहाँ था, क्वेश्चन हमारा ये था कि हमें जो इनकम टैक्स की जो रेट है ना वो 30% दे रखी थी, ये हमें अलग से दे रखी थी। तो ये हमें अलग से क्यों दे रखी थी, अब हम इसका काम कहाँ करेंगे, आप यहाँ पे रखना, याद रखना कि जो इनकम टैक्स की रेट है इसको देख के आपको घबराना नहीं है कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, कि ये तो इसमें है ही नहीं, इसके नीचे दिया गया, तो ऐसे घबराना नहीं है, मैं बताती हूँ आपको कैसे क्या करना है। ओके, हम यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, उसको ये लिखेंगे कि लेस इनकम टैक्स जो है हमारा 30% दे रखा है। ठीक है, तो हम 30% कैसे निकालेंगे, देखो गाइस, हमने जो ये निकाला है ना 16,20,000, उसका हम 30% कर देंगे, उसका हम 30% करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आएगी। ठीक है, ऐसे ही करना है सबका कि प्रीवियस ईयर का 30% निकालना है और करंट ईयर का 30% निकालना है। तो हमने प्रीवियस ईयर का 30% निकाल के हमारे पास ये अमाउंट आई। अब मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, अब आप ये समझिए कि इनकम टैक्स जब बोला है हमें 30% निकालना है, पहले तो हमने क्या किया था,
कि टोटल इनकम को हमने प्लस किया था, इन दोनों को हमने प्लस किया था, फिर इन दोनों को हमने माइनस किया कि जो कि हमारी ये वैल्यू आई। ठीक है, ये वैल्यू कैसे है, अब ये मत पूछना कि ये वैल्यू कहाँ से है, कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको पहले बता दिया है कि कैसे कैसे वैल्यूज आई हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 30% निकालना है। तो हम किस अमाउंट की 30% निकालेंगे, जो कि हमारी ऊपर होगी। ठीक है, ये जो है 16, ठीक है 16,20,000 जो हमारे पास अमाउंट है, हम उसका 30% निकालेंगे। तो हमारे पास आएगा 4,86,000 हमारे पास आएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का हो गया। ओके, अब हमें करंट ईयर में भी यही करना है। करंट ईयर में हमारा क्या आया था अमाउंट, हमारे पास ये था, ये है। अब उसका हमें भी 30% हमें निकालना है। तो हमारे पास अमाउंट आएगी इतनी, जो कि ये करंट ईयर का। ये पी और सी आप समझ लेना, ये प्रीवियस ईयर के लिए है, ये करंट ईयर के लिए। ठीक है, अब जो फिफ्थ वाला होगा ना, हमेशा वो 4-3 ही होगा। ठीक है, फिफ्थ वाले में हम 4-3 ही करेंगे। जैसे कि हमने जो इस अमाउंट को माइनस करना है इस अमाउंट से, तो हमारा ये अमाउंट आएगा। ठीक है, अब हमने परसेंटेज कैसे लाया मैं आपको ये बता देती हूँ। इंटू 100 करते हैं, और हम क्या करते हैं, डिवाइड में 3 लाते हैं। जो 3 नंबर का कॉलम है ना, हम उसको डिवाइड में रखते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से। तो हमारे पास जो 3 है वो कितना है, हम वो देखते हैं। सॉरी, हाँ मैंने गलत अमाउंट ले लिया गाइस, सॉरी। हमें ये अमाउंट चाहिए ना, हम इसको रफ कर देते हैं। अब हमें ये अमाउंट चाहिए, सॉरी ये अमाउंट चाहिए हमें। ठीक है, ये है, हमें इसको 100 से डिवाइड करना है, और हमें 3 वाला जो ये है ना, ये हमें 3 नीचे हमें 3 लाना है, कि जो डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं। तो हमारा जो है परसेंटेज इतना बनेगा। ओके, आपको समझ में आ गया ये कैसे होगा। अब हमें एक और वो बनाना है कॉलम, जिसमें हम लिखेंगे कि प्रॉफिट जो है आफ्टर इनकम टैक्स के बाद कितना हुआ। पहले तो हमने क्या लिखा था कि बिफोर, कि इनकम टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट था। अब हम लिखेंगे कि आफ्टर, मतलब इनकम टैक्स के बाद कितना प्रॉफिट आया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे ना, कि हमें जो है इसको इससे माइनस करना है। ठीक है, हमें किसको किससे माइनस करना है, तो जो प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स था और जो इनकम टैक्स का 30% हमने निकाला था, उसको हमने इसमें से माइनस किया, तो हमारे पास ये अमाउंट आया। हमें इसको माइनस करना है। देखो कैसे होगा वो माइनस, हमें जो है ये अमाउंट, मतलब ये लाने के लिए ना, हमें यहाँ पे हमने दे रखा है कि जो है इसको इसमें से माइनस करना है, मतलब प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स को लेस इनकम टैक्स से माइनस करना है। मतलब हमें इस पर्टिकुलर अमाउंट्स को एक दूसरे से माइनस करना है। ठीक है, इसको माइनस करना है, तो हमारे पास ये आएगा, ये आएगा। और फिफ्थ वाला हमने अमाउंट ऐसे देख रखा था कि कैसे क्या क्या आएगा। अब मैं इसको ज़्यादा समझाऊंगी नहीं, ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा 40th क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ यश एलटीडी कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। अब ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर जो है, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम पहले वो फॉर्मूला देखेंगे कि हमें उस फॉर्मूले में क्या क्या करना होता है। हमें इसमें पहले क्या क्या दे रखा है, टोटल एसेट दे रखा है, नॉन करंट एसेट दे रखा है, टोटल लायबिलिटीज दे रखी है, नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखी है, और सेल्स दे रखा है। ठीक है, हमें ये सब चीज़ दे रखा है। अब हमें इसका जो है अकाउंट बनाना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो हमें दे रखी है उससे जो है हमें अमाउंट बनाना है। अब हम आगे करेंगे, ये देखिए हमारा आ गया आंसर। अब हमारे पास क्या क्या दे रखा था कि हमें एसेट दे रखी थी, नॉन करंट एसेट दे रखी थी, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी थी, टोटल एसेट लायबिलिटी दे रखी थी, और सेल्स दे रखा था। ठीक है, अब हमें ये याद रखना कि मेन में क्या है ना, कि हमें क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब सेल्स तो हमें दे रखा है, ठीक है, कि सेल्स तो क्वेश्चन में ही हमें दे रखा है। अब वर्किंग कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें दे ही नहीं रखा है, तो उसका भी फॉर्मूला होता है। अब देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, मतलब ये जो है ये फॉर्मूला है, याद रखना है इसको। ये सब चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए, ताकि आपको जो ये फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं। ओके, तो ये भूलना मत आप लोग। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ये है फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, गाइस राइटिंग पे मत जाना, मैं दोबारा बोल रही हूँ। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब करंट एसेट
को हम अब हमने करंट एसेट की भी जो है फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। तब हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो ये है, पर हमें करंट एसेट तो दे नहीं रखा है, ना ही हमें करंट लायबिलिटीज दे रखी है, तो हमें इनको भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल से हम क्या करेंगे, जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेट जो पूछा है क्वेश्चन में, फिर हमारा उसका वहां तक आंसर आएगा। तो याद रखना कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेट को निकालने का फॉर्मूला ये है कि सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला ये है कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज तो हमें दे नहीं रखे, अगर दे रखा होता तो हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता निकालना, पर अब हमें क्या करना है, हमें करंट एसेट्स को निकालना है। तो हमें टोटल एसेट्स तो दे रखे हैं ना गाइस, टोटल एसेट दे रखे हैं और नॉन करंट एसेट भी दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे ना कि करंट एसेट को निकालने का फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, भूल मत जाना आप लोग। टोटल एसेट को माइनस करेंगे नॉन करंट एसेट में, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, करंट एसेट, ठीक है। हमने टोटल एसेट का जो है वैल्यू ली यहाँ पे, और जो नॉन करंट एसेट की थी वो अमाउंट लिया है हमने, ठीक है, जिससे कि हमने इनको माइनस किया है। याद रखना कि नॉन करंट एसेट पीछे आएगा, टोटल एसेट आगे आएगा, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट हमारा जो है करंट एसेट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास करंट एसेट आ गया। अब हमारे पास क्या निकालना है, हमें करंट एसेट तो हमने निकाल लिया, अब करंट लायबिलिटी तो हमें निकालनी पड़ेगी ना कि नहीं निकालनी पड़ेगी, आप छोड़ तो नहीं दोगे ऐसे उसको, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी के लिए हमें यही करना है, जैसे हमने टोटल एसेट किया था, नॉन करंट एसेट माइनस किया, तो उसमें से ऐसे ही इसमें करना है कि टोटल लायबिलिटी को माइनस करना है नॉन करंट लायबिलिटी से। अब हमें ये चार चीजें दे रखी थी, इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं। हमारे पास क्या था, टोटल लायबिलिटीज का जो फॉर्मूला वो वैल्यू है हमारी इतनी दे रखी थी, नॉन करंट की जो है इतनी दे रखी थी, हमने उनको माइनस किया तो हमारे पास इतना आया। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, करंट एसेट मिल गया, हमें नॉन करंट एसेट मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे मैं बता दूँ, ये वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पे ये वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में क्या था कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज करनी थी। मैं एक बार रफ कर देती हूँ तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये क्या है, ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल दे रखा है, हमने आगे लिखा नहीं है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये वर्किंग कैपिटल दे रखा है। अब वर्किंग कैपिटल का क्या था कि करंट एसेट को माइनस करना था करंट लायबिलिटी से, तो हमारी वर्किंग कैपिटल निकलती, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का जो है करंट एसेट कितना था, इतना, ठीक है, ये 15 लाख तो था जो करंट एसेट था, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी कितनी थी, 10 लाख थी, जिसमें से हमने 15 लाख को में से 10 लाख माइनस किया, हमारे पास कितना आया, 5 लाख गाइजेस, ठीक है। तो ये जो 5 लाख है ना, वो हमारे क्या है, वर्किंग कैपिटल है। अब हम जो है मेन फॉर्मूला पे आते हैं कि जो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, हमें क्या पूछा गया था कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का ये निकालना है हमें, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था कि सेल्स होगा, सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल होगा। अब सेल्स तो हमें दे रखा था ना, कि आपने क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सेल्स तो हमने पढ़ा था कि सेल्स जो है 25 लाख का हमें दे रखा था, हमें वर्किंग कैपिटल नहीं दे रखी थी, तो हमने सेल्स लिख दिया, ठीक है। वर्किंग कैपिटल हमने कितनी निकाली, 5 लाख, इतना लिख दिया, तो ये आ गया। हमें इसके पीछे टाइम्स लिखना ज़रूरी है, ऐसे आप 5 लिख के मत छोड़ना, हमें टाइम्स लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं रफ कर देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आपको ना समझ में आए तो ये इलस्ट्रेशन 28 है, आप जाके बुक में देख सकते हो एक बार। और अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो हमारी इन्फॉर्मेशन दे रखा है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये याद रखना कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि उसमें जो है कैश फ्लो में बहुत सारे मेथड्स दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हमें उसमें से एक मेथड दे रखा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हम पढ़ लेंगे कि इसमें क्या क्या है। सेल्स ऑन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है इतना है, परचेज ऑफ लैंड का इतना है, परचेज ऑफ मशीन का इतना है, सेल्स ऑफ फर्नीचर का इतना है, डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट का इतना है, पेड फॉर गुडविल का इतना है, इश्यूज ऑफ शेयर्स और रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स, लोन बोरोस, ये सब हमें दे रखा है, ठीक है। अब हम इसके आंसर्स पे जाएंगे। ये रहा इसका आंसर गाइस, ठीक है। अब हमें क्या क्या बनाना है, हमें कुछ करना ही नहीं है। अब इसमें ना सिंपल्स है, ठीक है। तो आप सेक्शन डी में बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आ सकते हो अगर आप जो है सिर्फ कुछ फॉर्मूलाज को अच्छे से रटोगे और कुछ मेथड को अच्छे से रट लोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो रटना ही पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके लिए, ओके। और अगर आप चाहते हो तो आप सिग्मा के ट्यूशन में आ सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, ओके। अब हम पढ़ते हैं आगे। हमें क्या क्या दे रखा था, हमें सिर्फ सिंपल में वही लिख देना है।
अमाउंट ये दे रखा था, पार्टिकुलर्स ये दे रखा था, ठीक है, हमें वही चीज़ें लिख देनी है। पर अब देखो हमने जो लिखा है वो लिखा है परचेज ऑफ लैंड, परचेज किया है हमने, तो पैसा हमारे पास से क्या हुआ है, गया है, ठीक है, इतना देखना। अब इसमें ब्रैकेट में क्यों है, आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। देखो नोट्स में क्या लिखा है हमने, अमाउंट शेयर शोन, ठीक है, जो अमाउंट दिख रही है ना आपको ब्रैकेट में, वो जो है कैश आउटफ्लो है। आउटफ्लो का मतलब क्या होता है कि जो कैश हमसे जा रहा है, ठीक है, जो कैश है हम वो दे रहे हैं किसी और के पास, ठीक है, तो हमसे तो कैश जा रहा है ना, हमने परचेज किया लैंड को, तो हमने परचेज किया, लैंड हमारे पास आए पर पैसा हमारे पास से गया, तो हम उस अमाउंट को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि हमें ये भी दिखाना है ना कि हमने कितना आउटफ्लो किया है, कितना इनफ्लो किया है, इसमें सब चीज़ दिखानी है हमें। तो जो ब्रैकेट में होगा ना अमाउंट, जो भी ब्रैकेट में होगा अमाउंट, वो आउटफ्लो है, मतलब वो जा रहा है। अब जैसे ही हमने सेल्स ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट किया है, अब आप पूछोगे हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, इसलिए हमने जो इसको ब्रैकेट में नहीं डाला है, ठीक है, ये ब्रैकेट में नहीं जाएगा, सॉरी, हम 1 मिनट में आ जाएंगे, हाँ, ठीक है। सेल्स ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो है हमने जो है इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो हमारे पास से तो पैसा आएगा, हमारे पास से पैसे तो जा नहीं रहे हैं, तो हमने इसको ब्रैकेट में नहीं डाला है। अब हमने परचेज किया है लैंड को, ठीक है, तो परचेज किया है तो पैसा जा रहे हैं, तो हम इसको करेंगे ब्रैकेट में डाल देंगे। परचेज ऑफ मशीन, इसमें भी हमारे पास पैसा जा रहे हैं, तो हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। अब सेल्स ऑन फर्नीचर, ठीक है, इसमें तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हमने सेल्स किया है ना फर्नीचर को। आप इतना अच्छे से ध्यान देना और पढ़ना कि हमने क्या क्या किया है, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी अमाउंट ब्रैकेट में आएगी, कौन सी अमाउंट ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सेल्स ऑफ फर्नीचर जो है ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। अब डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट पे हमें डिविडेंड मिला, तो पैसे हमारे पास क्या आए, गए कि आए, ऑब्वियसली आए हैं हमारे पास, तो हम उसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। अब पेड फॉर गुडविल, अब हमने पेड किया है, मतलब कि अब अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पेड वर्ड हो या फिर परचेज हो या फिर सेल्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन सब चीज़ों से आपको पता चल सकता है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर हमने खर्चा किया है या फिर हमारे पास पैसे आए हैं। तो अगर आपको और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इन सब चीज़ों से, इन सब ये जो वर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स हैं, ये याद रखना, ठीक है, उससे हमें पता चलेगा कि हमें कौन सी अमाउंट ब्रैकेट में लिखनी है, कौन सी अमाउंट ब्रैकेट में नहीं लिखनी है। अब पेड फॉर गुडविल, हमने गुडविल के लिए पेड किया है, तो वो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ठीक है, अब हमें ये बताया कि कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब हमें हमने जो ये है ना, ये क्या किया है, इसको हमने इसको प्लस किया, हमने इसको प्लस किया और हमने इसको प्लस किया। मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, ये अमाउंट कैसे आई है, यहाँ पे हमने जो ब्रैकेट में अमाउंट है ना, हमने उसको प्लस किया है, ठीक है, हमने उसको प्लस किया है तो हमारे पास ये अमाउंट आई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ज़रूरी कि जो ब्रैकेट में अमाउंट है वो कितनी है। तो हमें क्या लिखा है, हमने कैश आउटफ्लो जो गया है किस में से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में से, जो जितना कैश गया हमें वो यहाँ पे लिखना है। अब वो भी ब्रैकेट में ही लिखेंगे ना, क्योंकि उतना कैश गया है। अब हमने ना इसमें 3 एंट्री नहीं मारी है। अब वो देखते हैं कि कौन कौन सी एंट्री। पहले तो हम ये पढ़ सकते हैं कि देखो, पहले क्या था, नोट में हम लिखेंगे कि जो हमने एंट्री नहीं मारी है हमें उसको नोट में लिखना पड़ेगा। अब जैसे अमाउंट है, अमाउंट शो इन ब्रैकेट्स, ठीक है, जो ब्रैकेट्स में जो है अमाउंट शो हो रहे हैं वो कि कैश आउटफ्लो है, ठीक है, वो तो जा रहे हैं ना, इसीलिए हमने वो आउटफ्लो लिखा है। अब अमाउंट जो रेदर देन ब्रैकेट, मतलब जो ब्रैकेट में नहीं है वो तो इनफ्लो हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हमें ये 3 चीज़ें हमने नहीं लिखी हैं, जो ये इश्यूज ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और लोन ऑफ बोरोर्स, ये हमने नहीं लिखी है क्योंकि हमें ये नहीं लिखना होता है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इन तीन चीज़ों को क्यों नहीं लिखा है, ठीक है। इश्यूज ऑफ शेयर, रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स एंड लोन बोरोवर ट्रांजैक्शंस आर फाइनेंस एक्टिविटी, ठीक है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है और हम कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको नहीं लिखा। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी और वीडियोस देखने के लिए। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। बाय बाय।